hope you all are fine. So welcome back to my physics class. This is Sonali and you are watching the YouTube channel जिसका नाम है Physics Friction of Minds. So friends, as we all know, this is the subject where we cannot follow the rectification process. So in order to understand the physics from as close as possible, we are here to give you a guidance regarding the physics of a 12th board so that you can understand the physics to the easiest and the finest way. Okay? So friends, जो चैप्टर हम देख रहे हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू लेक्चर्स उसका नाम है चैप्टर नंबर 13, दैट इज AC circuit, right? And in the last lecture of this AC circuit we have seen the resonance circuit. So we have seen the two types of resonance circuit. एक था series resonance circuit और दूसरा था parallel resonance circuit. ठीक है? So दोनों को हमने comparatively study किया था लेक्चर के एंड में. दोनों के applications मैंने आपको बताए. So this is very important part as far as your exam is concerned, because exam में most of the time resonance circuit पे question पूछा गया है, theory question for the 3 marks. Okay, so prepare it nicely. Now moving towards the next point of this chapter, the name of that point as written on the board is LC oscillations. Okay, so LC oscillations मतलब क्या, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए what is mean by LC oscillators. LC oscillator circuit, because LC oscillator circuit में जो भी oscillations होंगे उन्हें हम कहेंगे LC oscillation. So first of all we should know what is mean by LC oscillator circuit. ठीक है, अब इस वर्ड को थोड़ा हम साइड में रखें तो यहाँ पे circuit लिखा है, right? So connection will be there, right? And here is a word LC, that means here we'll use one inductor having a particular inductance L and will used one capacitor having particular capacitance C. So इस तरह से एक इंडक्टर हम यूज करेंगे जिसका इंडक्टेंस होगा L और एक कैपेसिटर हम यूज करेंगे जिसका कैपेसिटेंस होगा C. ओके, और जैसे कि हर पॉइंट के स्टार्ट में हम कुछ तो भी अजम्पशन फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी एक अजम्पशन हमें ये फॉलो करना है कि ये जो इंडक्टर होगा दिस इज आइडियल एंड दिस कैपेसिटर इज आल्सो आइडियल इन नेचर, क्योंकि ये इंडक्टर जो है ये कॉइल से बना हुआ है, राइट? सो एवरी कॉइल ऑफ वायर हैज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एंड दैट्स व्हाई we will consider here the ideal inductor in which the resistance will be 0. So this is not resistive inductor. This is the first assumption that you should follow. और ये क्यों assume किया, I'll tell you at the end of the lecture. Okay? So LC oscillator circuit is a kind of circuit in which we'll use one inductor having particular inductance L and one ideal capacitor having a particular capacitance C, and we'll connect these two in parallel combination. Okay? एक circuit form होगा, so उसे हम कहेंगे LC circuit. अब ये oscillator क्यों है ये I'll tell you, but before that what is the use of this LC oscillator circuit? तो बच्चों ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, तो you have to remember this, that LC oscillator circuit provides us the electromagnetic waves. It gives us electromagnetic waves, and now these electromagnetic waves are used in radio and TV transmitters. Radio and TV transmitters in order to transmit the signal from one place to another. Okay, so this is the application of this LC oscillator circuit. और ये LC oscillator circuit में जो oscillations होंगे that is called as LC oscillation, which is your main point of today's discussion. Understood? So जो एक particular heading है इसका meaning I hope हमें समझ में आ चुका है. LC oscillator circuit is a kind of oscillator circuit in which the inductor and the capacitor will be connected in parallel. The oscillation will take place in this circuit, and such kind of oscillation is called as LC oscillation. And this LC oscillator circuit provides us the electromagnetic waves, EM waves, that means electromagnetic waves, and these electromagnetic waves are used for the radio and the TV transmitters in order to transmit the signal from one place to another place. Okay, so this is the purpose of using LC oscillator circuit. Okay, so देखो कुछ बेसिक चीजें हैं ये हम समझ लेते हैं, बाकी जो पॉइंट है वो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है,
तो इस पॉइंट को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसे आपको कॉन्सेप्ट नहीं तो इसे आपको एक स्टोरी करके ध्यान में रखना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर discussion regarding LC oscillation is going to be very interesting. So now let's see. So before that, as we are using here the inductor and the capacitor, so you should know, if I am talking about inductor, ठीक है, so inductor ये जो है ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी देखा है। इंडक्टर क्या करता है, इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट, ठीक है। अगर इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो करंट अगर चेंज हो रहा होगा तो उस चेंज इन करंट को ये इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है, एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो U stands for the energy and B stands for energy in terms of a magnetic field. So it is denoted by UV और इसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, it was 1/2 L I square, where I is the current flowing through this inductor, L is the inductance of this inductor. Okay, so this is about the inductor. So one thing is very clear, inductor stores energy in terms of magnetic field, and that energy is given by 1/2 Li square. Why in terms of magnetic field? Because when the current flows through it, it opposes the change in the value of current, and that's why a magnetic field will be created around it. So as there is a magnetic field, there will be a energy stored in inductor. So this is the energy stored in inductor in terms of magnetic field. Now talking about capacitor, ठीक है, so you know that capacitor consists of two parallel plates. दो parallel plates होती है, depends on the type of capacitor. Suppose you have a parallel plate capacitor, so this parallel plate capacitor consists of two parallel plates, or you know that in between these two parallel plates there is a dielectric medium. There is a dielectric medium, and here एक प्लेट पे, दोनों प्लेट पे अपोजिट पोलैरिटी होती है. If one consists of positive charges, another consists of the accumulation of negative charges, so that a potential difference will be there, and that's why here charges are there. So which field will be here? Electric field will be here. That means a capacitor stores energy or stores charges in terms of electric field, and regarding energy is denoted by UE. Okay, so that energy, this energy stored in a capacitor in terms of electric field is denoted by UE and is given by Q square upon twice C, where C is capacity of this capacitor or capacitance of this capacitor, Q is the charges stored on this in this capacitor, and 2 is a constant term. Okay, so you should know this because this is very important. अगर ये आपको समझ में आया तो ही आपको LC oscillation समझ में आएगा. So जो दो components हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर. इंडक्टर अपोजेस एनी चेंज इन करंट, ये उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें थोड़ा भी चेंज हुआ तो वो अपोजिंग या उस चेंज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है, and it stores energy in terms of magnetic field and is given by 1/2 Li square. Capacitor stores the electric charges, ये उसकी inbuilt property है that it stores the electric charges, and that's why there is a electric field. Okay, and that's why capacitor stores energy in terms of electric field, which is given by Q square upon twice C. Okay, so this is all about basic regarding inductor and a capacitor. Now oscillator word is here, right? So basically you know the meaning of oscillation. For the sake of example, suppose you have a simple pendulum, okay, and suppose this is a rigid support from which you have suspended one pointless mass that we call as a bob by means of this inextensible string. अब जब आप इसे डिस्प्लेस करोगे तो ये यहाँ जाएगा, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, राइट. ये फिर से ऐसे आएगा, इधर जाएगा. This is the maximum amplitude in a negative direction, right? Again it will go like this, and again it will come like this. So it will continue to oscillate like this. So this is a kind of oscillation, right? Where your bob is moving from amplitude. This is 0 amplitude. This is plus A. This is minus A. So if you are showing this
in terms of a waveform, then initially it is at 0, then it is going like this, again becomes 0, again it is going towards negative direction like this. Okay, that means your bob is continuously oscillating, the simple pendulum is continuously oscillating. Now question arises, same kind of oscillation is taking place here. जैसे यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशंस हो रहे हैं, क्या सेम टाइप के ऑसिलेशंस यहाँ पे होंगे? सो क्या एलसी जो है आपका इंडक्टर और कैपेसिटर इस तरह से ऑसिलेट होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट कीप इन माइंड दैट द ऑसिलेशंस आल्सो टेक्स प्लेस हियर जस्ट लाइक दिस, बट दिस एल एंड सी डजंट ऑसिलेट. ये एल और सी ऑसिलेट नहीं होता है, तो फिर ऑसिलेट क्या होता है? तो एक चीज आप देखो, ये 1/2L कांस्टेंट है, राइट? Means this energy of inductor is directly proportional to square of current. That means it depends on current. Here this YC is constant, right? That means energy stored in capacitor is directly proportional to the number of charges present on each plate, right? So oscillations are also taking place here, but the L और C जो है वो oscillate नहीं होता है, तो फिर oscillations काय में होते हैं? The oscillations takes place in this current through this inductor, and the oscillation takes place in the charge of this capacitor. And because of this oscillating current and because of this oscillating charges, what happens? The transformation of energy. The transformation of this energy into this one and this energy into this one continuously takes place. Okay, so that means यहाँ पे क्या हो रहा है? इस इंडक्टर की जो एनर्जी है, ये मैक्सिमम एनर्जी, इसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है. कैपेसिटर की एनर्जी में ये 0 हो जाती है, ये मैक्सिमम होती है, फिर से इसका ट्रांसफॉर्मेशन इंडक्टर की एनर्जी में होता है, फिर से ये 0 होती है, ये मैक्सिमम होती है. सो हियर there is a alternative transformation of energy from the inductor into capacitor, again from capacitor to inductor takes place, and that's why यहाँ पे oscillations हो रहे हैं, but this kind of oscillations are called as electrical oscillations. So such kind of electrical oscillation takes place here. So L और C oscillate नहीं होता है. So what oscillates? The energy oscillates from inductor to capacitor, capacitor to inductor in terms of current through inductor and in terms of charge of this capacitor, and that's why the electrical oscillation takes place. And such kind of electrical oscillations that takes place in L and C, that means inductor and capacitor, is called as LC oscillation. So you have to remember these things because this is base. अगर ये आपका बेस क्लियर है तो अभी आपको एलसी ऑसिलेशन समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी. ठीक है, तो आपका बेस पक्का होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये सारे की पॉइंट्स जो मैंने बताई अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो अभी पॉइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है. ठीक है, सो एक चीज़ क्लियर होगी कि एलसी ऑसिलेटर मतलब क्या. एलसी ऑसिलेटर में जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया, उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने देखा. यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहा है, वो भी हमें पता है. बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. इफ यू हैव द आंसर दैट हाउ द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर टेकिंग प्लेस हियर, देन यू कैन able to read this particular point, that is LC oscillation, then you will able to understand this point. So now we'll see how the electrical oscillation takes place, how the energy from inductor gets converts into capacitor, and again capacitor to inductor. We'll see this. Okay, so now let's start, and now we'll see how the LC oscillation takes place in kind of LC oscillator circuit. Okay, so friends, in LC oscillator circuit जो कैपेसिटर आप यूज़ करोगे उस कैपेसिटर को आपको पहले क्या करना है? फुल्ली चार्ज करना है. So in order to charge the capacitor, you have to connect this capacitor to one DC power supply. Okay, like this. अब क्या होगा? यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो होगा इस DC सोर्स के वजह से. अब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो गए तो ये DC करंट है और कैपेसिटर क्या करता है? DC करंट को ब्लॉक करता है. तो जैसे ही करंट ऐसे फ्लो होगा मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? यहाँ पे इस तरह से इस प्लेट पे सैचुरेट हो गए और अपोजिट प्लेट पे
पॉजिटिव चार्जेस सैचुरेट हो गए इस तरह से, राइट. सो दिस वे we have used one DC source that will flow the DC current as the capacitor blocks the DC current. As soon as these electrons will move to this plate, this electron, that means the charges will be stored on this plate, and that's why now we can say that your capacitor is fully charged. Okay, so this way you have fully charged the capacitor. Now in your textbook instead of a DC, AC source is used. Okay, AC source mention किया है, but I think DC is more convenient because ये कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. सो जैसे ही करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ रीच होगा, सारे के सारे चार्जेस जो है उस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएंगे, वो उसे ब्लॉक कर देगा. ठीक है, सो इस तरह से आपका जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से चार्ज हो गया है. ठीक है, सो अब क्या करना है, जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इस DC सोर्स को रिमूव करके इस DC सोर्स की जगह पे यू हैव टू कनेक्ट वन इंडक्टर having inductance, and this is capacitor having capacitance C. Okay, so initially यहाँ पे एक की यूज की है, यहाँ पे एक टैप की रहेगी. So at instant t equals to 0 in the first step, at instant t equals to 0 means initially क्या होगा, की क्लोज करने के पहले ये सर्किट मेक नहीं हुआ है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो चार्जेस है इस कैपेसिटर में स्टोर्ड रहेंगे. मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, मतलब कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होगी यूई वो कितनी होगी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी, राइट, वेयर क्यू नॉट आर द चार्जेस stored in this capacitor. Now as all the charges are stored in the capacitor, no charges are flowing before tapping the key, that means no current is flowing, and as the current is zero, करंट ही जीरो है, सो इस इंडक्टर में से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो इंडक्टर की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, जीरो. सो इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप चार्ज विल बी मैक्सिमम एंड करंट विल बी जीरो. करंट कैसा रहेगा, जीरो, मतलब चार्ज जो है वो मैक्सिमम रहेगा और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे रहेगा, जीरो रहेगा. ठीक है, सो एज नो करंट इज फ्लोइंग द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर विल बी जीरो. राइट दिस लाइक दिस. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू हैव क्लोज द की. जैसे ही आपने की क्लोज की, अब क्या होगा, ये जो चार्जेस यहाँ पे है, इन्हें एक पाथ मिल जाएगा फ्लो होने के लिए, और चार्जेस की टेंडेंसी है जैसे ही उन्हें कोई पाथ मिलता है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जैसे ही आपने क्लोज की, दिस चार्जेस हैज गॉट अ वन पर्टिकुलर पाथ टू फ्लो. सो आफ्टर क्लोजिंग द की, नाउ दिस चार्ज विल फ्लो एंड दैट्स व्हाई करंट फ्लो होगा इस तरह से. अगर करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो गए, तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो इनिशियली करंट जीरो था, करंट जीरो से डायरेक्ट मैक्सिमम नहीं हो सकता. क्यों, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर है, और इंडक्टर क्या करता है, जो भी करंट में चेंज आ रहा है उस चेंज को अपोज करता है. सो करंट अगर डायरेक्टली सेकेंड स्टेप में जीरो से मैक्सिमम होना चाहता है, तो ये इंडक्टर उसे जीरो से मैक्सिमम नहीं होने देगा. ये इंडक्टर क्या कहेगा, तू बढ़ धीरे धीरे बढ़, बिकॉज सडन चेंज इन करंट को इंडक्टर अलाउ नहीं करता है. करके यहाँ के कुछ चार्जेस निकल के फ्लो हो गए, और जैसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो हो गए, सपोज यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके यहाँ पे आए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे. मतलब अब क्या हो गया, सेकेंड स्टेप में चार्जेस जो है वो डिक्रीज हो गए, बट एट द सेम टाइम अब इस चार्ज के फ्लो की वजह से क्या हुआ, करंट कंट्रीब्यूट हुआ, मतलब करंट जो है वो आपका जीरो से इंक्रीज हो गया. राइट, सो अब ये करंट इस इंडक्टर में से फ्लो होगा, और इस इंडक्टर के अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. मतलब जो फ्लक्स जीरो था वो फ्लक्स अभी जीरो से इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे फील्ड लाइंस होगी. सो these are the field lines which represents the magnetic field around the inductor. Okay, so now what will happen, अब क्या होगा, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मतलब यहाँ पे एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, और वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी होगी इंडक्टर की, 1/2
L I square, where I is the current flowing, right? So this way current has been increased from 0 to certain value, but now your maximum charge has been decreased. Q नॉट से क्या हो गया, ये चार्ज Q नॉट से Q डिक्रीज हो गया, करंट 0 से I हो गया, ठीक है। सो ये थी आपकी सेकेंड स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा। सो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ आपका, जो आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी कैपेसिटर की, उसका पार्शियल कन्वर्शन काय में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर में, और इस तरह से इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी आ गई। ये एनर्जी किसने दी, कैपेसिटर ने। सो अगर कैपेसिटर के चार्ज कम हो रहे हैं, मतलब ये जो आपका कैपेसिटर है ये स्लोली क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है। सो द कैपेसिटर विल नाउ स्टार्ट टू डिस्चार्ज, ओके, एंड द करंट विल ग्रो फ्रॉम 0 to value I, and now see in the next step what will happen. Again, as inductor doesn't allow the sudden increase in current, so पहले current जो है वो 0 से I हुआ, और अब क्या होगा, ये जो बचे हुए चार्जेस है ये भी फ्लो होगी क्योंकि सर्किट आपका क्लोज्ड है। सो ये जो दो निगेटिव चार्जेस थे ये अब ऐसे फ्लो हो गए, जिसकी वजह से फिर से करंट कंट्रीब्यूट होगा, और अब जो है इस इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा I नॉट, ओके, बिकॉज एज इंडक्टर डजंट अलाउ द सडन इंक्रीज इन करंट, सो स्टेप वाइज करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडक्टर क्या कह रहा है, करंट क्या कह रहा है इंडक्टर को, मैं बढ़ना चाहता हूँ, इंडक्टर क्या कह रहा है, तू बढ़, बट धीरे धीरे बढ़। सो पहले करंट I हुआ, और अब क्या हुआ, जो रिमेनिंग चार्जेस थे इस कैपेसिटर पे वो भी फ्लो हो गए, जिसके वजह से मैक्सिमम करंट इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। बट अब ये दो चार्जेस जब फ्लो हुए, सो ये जब यहाँ पे आएंगे तो ये दो पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे। इसका मतलब क्या, जो अभी यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 है, राइट। सो इस तरह से थर्ड स्टेप में चार्ज 0 हो गया और करंट जो है वो इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गया, एंड दैट मैक्सिमम करंट हैज बीन डिनोटेड बाय I नॉट, ओके। As the maximum current is flowing through this inductor, it will create the maximum magnetic field. That means जो फ्लक्स लिंक्ड हुआ था, पहले 0 फ्लक्स था, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, अब अगर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो और फ्लक्स इंक्रीज होगा, so the flux will increase, so the field lines will increase. So I have shown a dense field lines which represents the maximum current, maximum magnetic field. Okay, इस तरह से. So now what will happen in this third step? As the maximum current, जैसे ही करंट 0 से मैक्सिमम हुआ I नॉट, वैसे ही यहाँ पे चार्जेस क्या हो गए, चार्जेस सारे गायब हो गए, चार्जेस सारे क्या हो गए, नलिफाई हो गए। मतलब इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था, मतलब जो इस पे चार्जेस स्टोर थे वो कितने हो गए, 0 हो गए। अगर चार्जेस 0 है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था इन दो पैरेलल प्लेट के अक्रॉस वो भी कितना हो गया, 0 हो गया। सो अब क्या होगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, वहाँ के चार्ज ही अगर 0 है, अब ये चार्ज ही 0 है, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो भी कितनी हो जाएगी, 0। एंड नाउ दिस इंडक्टर विल हैव अ मैक्सिमम energy of 1/2 L I naught square. So in the third step, the maximum electrostatic energy of capacitor has been fully converted into the maximum magnetic field energy of this inductor. ठीक है? Now in the fourth step, what will happen? अब क्या होगा, करंट 0 था, 0 से इंक्रीज हुआ I से फिर से मैक्सिमम हुआ I नॉट, चार्ज मैक्सिमम था, Q नॉट से डिक्रीज होके Q हुआ, Q से फिर से डिक्रीज होके क्या हो गया, 0। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब क्या, करंट ऑफ इंडक्टर एंड चार्ज ऑफ कैपेसिटर आर चेंजिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम टू 0। सो दिस चार्ज एंड करंट इज ऑसिलेटिंग एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर टेकिंग प्लेस। सो नाउ सी इन द फोर्थ स्टेप व्हाट विल हैपन। अब इस कैपेसिटर जो है, इस कंडीशन में आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, टोटली डिस्चार्ज हो चुका है, बिकॉज चार्ज कितना है, 0। सो इन दिस डिस्चार्ज केस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज 0 बिकॉज नो चार्जेस आर देयर। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो अब ये जो मैक्सिमम करंट इस इंडक्टर से फ्लो हो रहा था, ये क्या कहेगा कि अब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो मुझे 0 होना पड़ेगा। मतलब अब मैं क्या करता हूँ, I नॉट से डिक्रीज होके कितना हो जाता हूँ,
जीरो हो जाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? करंट कह रहा है, बट ये तो इंडक्टर है। इंडक्टर फिर से क्या कहेगा? मैं तुझे सडन मैक्सिमम से जीरो नहीं होने दूंगा, तो डिक्रीज हो बट धीरे धीरे हो, बिकॉज इंडक्टर डजंट अलाउ द सडन चेंज इन करंट, फिर वो इंक्रीज हो या फिर वो डिक्रीज हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, चार्जेस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ये जो मैक्सिमम करंट था आई नॉट, ये भी अभी डाई होना चाहेगा, मतलब ये मैक्सिमम से कितना होना चाहेगा? जीरो होना चाहेगा। बट भाई यहाँ पे इंडक्टर बैठा है, इंडक्टर, कैपेसिटर कह रहा है कि मैं जीरो हो गया, मेरी कहानी खत्म, स्टोरी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। इंडक्टर क्या कहेगा? स्टोरी अभी स्टॉप नहीं होगी, कहानी अभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी है, और इस मैक्सिमम एनर्जी से मैं क्या करूँगा? फिर से तुझे रिचार्ज करूँगा, जो तो पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, आई विल अगेन रिचार्ज यू। तो देखो अब क्या होगा, ये करंट पोटेंशियल जीरो होने की वजह से ये करंट मैक्सिमम से जीरो होना चाहता है, बट इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर डाइंग करंट को सपोर्ट करता है और ग्रोइंग करंट को अपोज करता है, ये चीज हमें पता है। सो अब क्या होगा, जो मैक्सिमम फ्लक्स टू लिंक्ड हुआ था इस इंडक्टर के साथ, ये इंडक्टर क्या करेगा? अपना फ्लक्स डिक्रीज करेगा, अपनी एनर्जी डिक्रीज करेगा। सो क्या होगा, जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज होगा, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल इंड्यूस ईएमएफ इन दिस इंडक्टर। तो ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फेनोमेना हमने देखा है। सो इंडक्टर क्या करेगा, जो मैक्सिमम फ्लक्स जो उसके पास था उसे डिक्रीज करेगा, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन फ्लक्स, इस इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। और आपको पता है इंडक्टर डाइंग करंट को सपोर्ट करता है करके, अब जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी एज दैट ऑफ योर इनिशियल करंट, बिकॉज इंडक्टर सपोर्ट्स डाइंग करंट। अगर वो सपोर्ट कर रहा है सो वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में आपका इनिशियल करंट था, राइट? सो दिस वे, जैसे ही ये दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड करंट ऑफ दिस इंडक्टर, बिकॉज इंडक्टर क्या बोल रहा है कैपेसिटर को, मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी है, सो इस एनर्जी के भरोसे मैं तुझे फिर से रिचार्ज करूंगा। सो जैसे ही ये इंड्यूस करंट इस इंडक्टर में से फ्लो होगा, सो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस ऐसे मूव हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हो गए, मतलब जो चार्ज जीरो था वो चार्ज जीरो से अब क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, फिर से क्या हुआ, जीरो से क्यू हो गया, और जो करंट था आपका आई नॉट, वो आई नॉट से फिर से क्या हो गया, आई हो गया। ओके, सो करंट जो है, ये करंट इस सर्किट में जो परसिस्ट हो रहा है वो कौन सा करंट है, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड करंट ऑफ दिस इंडक्टर विच विल हैव अ लेस मैग्नीट्यूड। सो नाउ द करंट इज लेस एंड द चार्ज हैज बीन अगेन developed on this plates of capacitor. So again reverse process हो रही है. So this way इंडक्टर ने क्या किया, कैपेसिटर को फिर से रिचार्ज किया, बट इन opposite direction. So remember this. Okay. So now in the next step what will happen? Again इंडक्टर will again decrease its flux. ये फ्लक्स डिक्रीज करके टोटल फ्लक्स जो है phi वो कितना कर देगा, जीरो कर देगा। जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो ये जो करंट है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये साइकिल तब तक कंटिन्यू रहेगी, ये इंडक्टर तब तक इंड्यूस करंट फ्लो करवाते रहेगा जब तक आपके कैपेसिटर के प्लेट्स पे मैक्सिमम चार्जेस स्टोर नहीं हो जाते। और जैसे ही फिर से चार्ज Q से Q नॉट हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इंडक्टर ने कैपेसिटर को क्या किया, फिर से फुल्ली रिचार्ज कर दिया, राइट? सो अगर अब कैपेसिटर फुल्ली रिचार्ज है तो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई, Q नॉट स्क्वायर अपॉन वाई सी। और जब आपका कैपेसिटर फुल्ली रिचार्ज हो गया, जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट फिर से कितना हो गया, जीरो हो गया, राइट? और अगर करंट जीरो है, फ्लक्स जीरो है, फील्ड जीरो है, मतलब इस इंडक्टर की जो एनर्जी है यू बी वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। एंड यू गॉट योर इनिशियल स्टेट बैक, वेयर
capacitor has maximum electrostatic energy and the energy of inductor is 0. But now this is in reverse direction because you see inductor ने capacitor को recharge किया but is opposite direction. See here, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे निगेटिव, बट जब रिचार्ज हुआ यहाँ पे निगेटिव चार्जेस है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव लाइक दिस. वहाँ पे फील्ड ही 0 है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी लाइक दिस. ओके, सो दिस वे राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हाट इज हैपनिंग. Initially, charge was maximum, current was 0. There was a maximum electrostatic energy. Energy of inductor was 0. In the next step, current increase हुआ, charge decrease हुए. So maximum electrostatic energy जो थी कैपेसिटर की, उसका partial conversion इंडक्टर के एनर्जी में हुआ. थर्ड स्टेप में चार्ज डिक्रीज होके 0 हो गया, करंट इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गया. इस केस में कैपेसिटर आपका फुल टोटली डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी आ गई 1/2 I0 स्क्वायर. मतलब कैपेसिटर के मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्शन इंडक्टर के मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में हो गया. फिर द नेक्स्ट स्टेप, करंट डाई होना चाहता है, इंडक्टर ने सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना किया, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया, उस डाइंग करंट को सपोर्ट किया और फिर से इस कैपेसिटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिचार्ज किया. कैपेसिटर अगर फिर से रिचार्ज हो रहा है तो उसका चार्ज बढ़ रहा है 0 से, जो 0 था, बट एट द सेम टाइम करंट क्या हो रहा है, करंट घट रहा है. और ये साइकिल तब तक चलते रहेगी जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता. जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे स्टोर्ड हो गए, सो इंड्यूस्ड करंट कितना हो गया, 0 हो गया. सो फिर से यहाँ पे करंट 0 हो गया, यहाँ पे चार्ज जो है आपका मैक्सिमम हो गया. सो यू गॉट योर इनिशियल स्टेट बैक. सो दिस वे the electrical here, the charges from the capacitor and the current from the inductor is continuously changing its value from 0 to maximum, again maximum to 0. And that's why I've said that the electrical oscillations are taking place here. यहाँ पे एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर. एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस we call such kind of oscillation as LC oscillation. तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया, नहीं आया, आना चाहिए. अगर यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, तो एनर्जी आई कहाँ से, कैपेसिटर के पास एनर्जी कहाँ से आई. तो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे डीसी पावर सोर्स कनेक्ट किया था. सो उस डीसी पावर सोर्स ने कैपेसिटर को क्या किया था, चार्ज किया था. तो वो एनर्जी सोर्स था हमारा, डीसी पावर सप्लाई एनर्जी सोर्स था. उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटर के एनर्जी में हुआ, उस कैपेसिटर के एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इंडक्टर के एनर्जी में हुआ. और अब ये डीसी पावर सप्लाई की एनर्जी कंटिन्यूअसली कैपेसिटर और इंडक्टर के एनर्जी में कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म होते रहेगी. इस तरह से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होते रहेगा from capacitor to inductor, inductor to capacitor, and that's why we call such kind of oscillation as LC oscillations. So जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया. So ये थी सिंपल सी स्टोरी, समझ में आई. So बस एक ध्यान में रखो कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है एक दूसरे के दुश्मन है. कैपेसिटर डिस्चार्ज था, इंडक्टर क्या बोल रहा है, तो डिस्चार्ज है, मैं तुझे क्या करूँगा, फिर से रिचार्ज करूँगा. जैसे कैपेसिटर फुल्ली रिचार्ज हो गया, इंडक्टर अपना 0 हो गया, इंडक्टर की एनर्जी 0 हो गई, ठीक है. कैपेसिटर क्या कहेगा, तूने मुझे फुल्ली रिचार्ज कर दिया, मैं फिर से तुझे एनर्जी दूंगा, ठीक है. सो ऐसे होते रहेगा, ठीक है. तो ये सिंपल सी स्टोरी है, ध्यान में रखो. तो जो भी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, हर ऑसिलेशन की एक पर्टिकुलर क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है. सो फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस एलसी ऑसिलेशन, frequency of this LC oscillation depends on values of L and C. So जो इंडक्टर और कैपेसिटर आप यूज कर रहे हो उसके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी.
ओके, सो अगर आपका कैपेसिटर और आपका इंडक्टर आइडियल है, मतलब अगर आपके पास एक आइडियल एलसी ऑसिलेटर सर्किट है, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस है, ये जो एलसी ऑसिलेशंस है, इनका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड ये थ्रू आउट द साइकिल कैसे रहेगा, थ्रू आउट द साइकिल कांस्टेंट रहेगा। बट ये आइडियल केस है। ये जो एम्पलीट्यूड है इस एलसी ऑसिलेशन का, ये अफेक्ट होता है, और ये एम्पलीट्यूड इस तरह से स्लोली क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ऑसिलेशन हो रहा है एनर्जी का, वो होते होते डिक्रीज होते होते वो एनर्जी फाइनली कितनी हो जाती है, ज़ीरो। जहाँ पे एनर्जी ज़ीरो हो गई वहाँ पे ऐसे ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, सो इफ दिस इज द केस, such kind of oscillations are called as damped LC oscillation, because here amplitude is getting affected by a certain factor. That's why we call it as a damped LC oscillation. And if for the ideal case, if your amplitude is constant, you call it as a undamped LC oscillation. अब क्वेश्चन ये है कि ऑसिलेशन डैम्प क्यों होते हैं, क्यों एनर्जी लॉस होती है। सो जो इंडक्टर आप यूज़ करते हो इस एलसी ऑसिलेटर सर्किट में, ये इंडक्टर मतलब क्या है, कॉइल है वायर की, राइट। और हर कॉइल को एक खुद का रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस होने के वजह से जब करंट फ्लो होगा इस इंडक्टर में से, तो क्या होगा, हीट लॉस होगी। जब रेजिस्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो हमें पता है हीट जनरेट होती है, हीट लॉस होगी। हीट लॉस हो रही है मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते वक्त जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। जब एनर्जी ज़ीरो हो गई, एनर्जी ही नहीं है, तो ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए अगर आपने एक आइडियल इंडक्टर ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, एक आइडियल इंडक्टर जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, ज़ीरो। मतलब अगर आपने एक नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर ले लिया तो ये चीज़ जो है, ये जो डिफ़िकल्टी है, ये ओवरकम हो सकती है। स्टिल एनर्जी लॉस होती है, स्टिल एनर्जी गेट लॉस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। If you are taking a ideal inductor, still the energy get lost in terms of the electromagnetic waves, and these electromagnetic waves are used in the radio and TV transmitter in order to transmit the signals from one place to another, जो कि इसका application मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। सो इस तरह से ये पॉइंट था एलसी ऑसिलेशन का। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट को लेकर। सो बस सिंपल 5 स्टेप्स ध्यान में रखो, कहाँ क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कहाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ध्यान में रखो, एक स्टोरी बना के ध्यान में रखो इसे। ओके, सो विद दिस पॉइंट द एलसी सर्किट हैज बीन completed. It's your job to solve the exercise, to solve the theory question. AC सर्किट्स पे रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, सीरीज LCR सर्किट, रेजोनेंस सर्किट पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो डू इट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, जस्ट पुट योर डिफिकल्टी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो अगर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप होगा तो वो भी बताइए, ठीक है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता। सो इफ देयर इज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट, जस्ट मेंशन इट। एंड एट द एंड, just want to tell you, if you have not yet subscribed the channel, just subscribe it so that you will get the notification for all the latest videos. Okay, so till then, stay studious, stay curious. Thank you.